Okay. So, hello everyone. Welcome to Academy. This is the counseling session. That is the first session that we'll conducting for you. Maybe you are preparing for civil services, or you are not preparing for civil services, or whatever. This counseling session is for all the candidates of India, and this is a very new concept because mostly what happens is first we graduate, first we do BTech, and then we decide what to do next. So I think this is the same story with every one of you, that you might have reached to some point in your career, and then now people are wondering what to do, preparing for civil services, 3 attempts, 4 attempts over. What next? I don't have any, I can't find any other career option for me. Age is going on. What to do? What are the options available? So, all these things, insecurities and all, it's a common problem for Indians. So, in order to address that, we have started this. Hope with these sessions, you will get some good insights, and you will be feeling helpful, and you can plan your career accordingly. So, ma'am will be taking the presentation. So, ma'am, yes. So, let me introduce Asha, ma'am. So, Asha, ma'am has is the career family and relationship therapist, and she is currently based in Canada. And now she has joined our institute to guide you, because that was the major concern which I felt right from 3 4 years since I'm connected with you people. So over to you, ma'am. It's your call. You can proceed. Thank you so much, sir. Um, um, a very good evening to all the students here. I would like that all the students, if possible for you, you can on your cameras. Until unless it's like, no, you are not in the situation, you can't. Like, and I am not forcing you, pushing you, but if possible, because we feel connected when see each other. Am I right? Thank you so much, Puspalata, Ravi, and who is next? I'm not able to see her name. Mm, yes, Sahana, Gauri, Sahara, welcome. My heartiest congratulations to everybody who are joining. The reason, let me tell you the reason why I'm so happy and excited. One reason that it's a decision you made to be here, my dear students. You could have been anywhere. It's not compulsion. Nobody forced you to be here. Am I right? It was your personal choice to be here. And that shows that you are really interested in yourself, in your growth. So, can you do one small thing for yourself who are here? Everybody who are coming on a camera or even not camera. Take your right hand and take it to the back and pat little to yourself. Can you do that? And who are not on camera, Yes, please ma'am. send some emoji which you resonate with that the most. Anything. So that I will come to know that you are here, you are present. And this is going to be a kind of interactive session. Okay? Just give me a second. Mm, 1 minute. So, my voice is completely audible to you? Yes, ma'am, Yes, it's ma'am. audible. Correct. Just a second. So let's move to exactly for what reason we are here. Any problem, anytime you feel that you are not audible to my voice or any challenge, just connect, like chat in the, you message it so that I will take care of those things. Now, before going ahead, I would like just one thing from your end, that how many of students who are joining now? It's very clear that this is a career counseling session, but before that, I'm asking few questions. How many of you are clear about what you want to do in your life? One word, just you can write in the chat box, clear or not clear. Can you do that for yourself?
I'm not seeing anything in chat. Anybody is typing? Anybody's typing? Just clear. Or even you can write C or not C. Like not clear. NC. That's all. Oh, thank you so much, Puspalata Gauri. Okay, keep on doing that till let me continue because we have a very limited time and we have to cover a lot. And now already it's 9:15. It's going to, so only we have 45 minutes in our hand. Before going ahead, I told that I would like to address few important things because as much as I know that all of you are like degree student who have completed degree or preparing for UPSC, or maybe you may be planning something else. I'm not knowing you personally. So will you help me to like with one thing that like in which are you in first degree, first year, second year, or completed? Just mention that. It will help me to connect with you well. If you're first year, second year completed, or whatever you are doing, just type this. BSc graduate last year, Sarah, yes. Okay, so in between you can do that. I'm seeing the chat, and in between I will, that will be in my mind that whom I am connecting. Okay, completed B civil. Okay, so keep on doing that. So before, okay, now I would like to share. I'm going to ask two questions to everybody. Either you are interested to unmute yourself or write in the chat, but do like it's a mandatory thing that you must keep on participating because it helps me and it helps you. First question is that really are you interested in your success? Yes. Excuse me, ma'am. Excuse Sure. me, ma'am. This Tell chat, me. yes, ma'am. Means the chat box is creating some problem because messages are directly coming to me, and I'm changing it to everyone. It's not happening. So it's better students can unmute and then they can Okay, respond. that will be the best thing actually. It will be the best thing that they can unmute themselves and share their views. So now going to ask two questions. First question, just tell me, truly are you interested in your success? It is remarkable Yes, that ma'am. really, Definitely, because ma'am. everybody you'll ask, no, everybody is interested in success. Who doesn't want success? Everybody. But really, this word is very remarkable here. You have to mark it and then answer me. Then, if you are telling that yes, it means me a lot that I am really interested in my success, then your attitude towards the success will be different. With the person who just simply tells, oh, yes, I am interested in the success. So that you mark this word. So if it is yes, I'm really clapping for you who are telling that yes. My next question, that are you ready for the next question or still want to think? Ready, Yes, ma'am. ma'am. Ready. Great. Do you want to know about the kind of career which you are really passionate about? No, ऐसा कोई काम जो करियर इन फ्यूचर आप ऑप्ट करना चाहोगे जिसके लिए आप रियली पैशनेट हो, जो आपको करने में मजा आ जाए? क्योंकि ना जॉब को लोग बहुत अलग तरीके से लेते हैं, काम करना है, पैसे कमाने हैं, मेहनत करना है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम किसी जॉब को पूरा पैशन से करना चाहे ना, तो बस हम अपना काम करते हैं, हमें मजा आता, पैसे तो खुद ब खुद आते हैं। डू यू अग्री विथ मी व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चाहोगे आप कि ऐसा हो कि आप वैसा करियर अपने लिए चूज करो जिसके लिए आप रियली पैशनेट हो, कभी कोई आपको दबाव नहीं, यहाँ पर काम 5 घंटा करवाए, आप खुशी से 7 घंटे काम करोगे, कितना मजा है ना। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, they were like that. Nobody forced them to go and do that research for 17 years and itne, and they came out with such a great inventions, bulb banaya and something, many things. Nobody forced them to do that. Like no, whole day, night, they're not feeling hungry, they're not feeling like na thirsty, and bus they're not even aware ki duniya mein kya ho raha hai. So
do you want the such kind of passionate job or career for yourself? Yes, ma'am. Next question Yes, comes. ma'am. That Yes, is the ma'am. I additional would question say. आई एम सपोज टू आस्क इन द लास्ट, और चलो उसको मैं अभी पेंडिंग रखती हूँ. अगर दोनों का क्वेश्चन यस है तो यू आर वेरी राइट प्लेस. आई एम हियर टू गाइड यू फॉर दैट. ओके, चलो डन. अभी मैं आपको एक 3D फार्मूला ऑफ सक्सेस बताती हूँ जो मैंने खुद डेवलप अपने लिए किया था, एंड इट वर्क्स विथ मी अ लॉट. आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस. आर यू रेडी? Yes, ma'am. Tell me ready. Yes, ma'am. Everybody Yes, ma'am. unmute Ready. and tell I am ready. I am Yes, ready, ma'am. ma'am. I'm ready. Okay, great. First D, 3D formula I told na. So first D. कोई guesses? Any guesses? चलो. Since we Direction. don't have much time, who told what? Direction. First, please. Direction you are telling? Yes, ma'am. Okay, that is one of the thing. Maybe I will use some synonym, but yes, somewhere it will be. Anyone else can try? It could be dedication. Dedication, yes, it is also the word which I kept. It is a kind of synonym. Any other words? Okay, so let's go ahead. First comes, like in my list, that is desire. Can you unmute or tell together the word desire? Design. Thank you. So, I think, how many of you are here who can understand Hindi well? Everybody? Yes, Yes, ma'am. I ma'am. don't know anybody now, so that's why I'm asking this question. Everybody, anybody ma'am. who doesn't understand Hindi, just unmute and tell I don't understand Hindi. So I will keep on making this as a note. I should keep on everything. I will repeat it or translate it. If anything I speak in Hindi, can you? Anybody is there who is not able to understand Hindi? I think कोई भी नहीं है. Prabhas sir, is there anybody who doesn't? No student from South India here. All are Okay. from Hindi belt. Chalo, it's okay. So I can use on and off Hindi, and I really love the language. एक मैं फिल्म का डायलॉग बोलती हूँ. Just tell me from which film I have taken this dialogue. जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. सुना है ना? Yes, ma'am. मोहब्बत है. From the मोहब्बत है. मोहब्बत है. No. no, ma'am. Om It's Shanti. Om Shanti Om. Sorry, Om Shanti Om. Yes, Sorry, ma'am. correct. गलत हो Om Shanti Om. Om Shanti Om. Who is the actor here? किसने ये डायलॉग बोला है? शाहरुख खान. शाहरुख खान. चलो, so very correct answer. अभी मैं कुछ गिफ्ट तो नहीं दे रही हूँ. प्रभास सर, अगर इनके लिए एक हार्ट सेंड कर दो जिन्होंने सही आंसर किया है. अगर इमोजीज जा रहा है तो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है तो. ये सबको कैडबरी भेज दूंगा. Thank you so much. So, yes, that is Om Shanti Om. I'm not here to talk about the movie, but what the statement I made now, it is very, very important. It's something remarkable things we have to figure it out here. I told, यहाँ पर you have to दो चीज निकालनी है, समझनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम टोल्ड, जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, अभी इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं. मैंने इसके पहले भी कुछ बोला है कि हमारे, तो क्या आपके पास वो चीज है जिसको आप पूरी शिद्दत से चाहते हो? है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा. अगर सक्सेस के पीछे चाहते हो अपने लिए तो करोगे ना? अगर ढूंढ लिया है तो ओके है, नहीं ढूंढा है अभी तक, कभी सोचा भी नहीं डीपली, तो अब सोचना. और अगर इसके बाद भी चैलेंज आता है कि ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, then we people are here to help you. क्योंकि ये चैलेंज एक्चुअली मैं बताऊं, रिसर्च सेज दैट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल रिगार्डिंग दिस. जिनको वो चीज ही नहीं मिल पाती जिसको वो शिद्दत से ढूंढ रहे हैं. ठीक है,
So not to worry, but try to figure it out for yourself. अभी नेक्स्ट थिंग है, इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट लेट मी टेल यू. पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. The whole universe conspire to help you in that, to get it. How amazing and beautiful it is. Yes, isn't? है ना? आपको Yes, सिर्फ ma'am. अपना काम बहुत करना है, बाकी चीजें तो बस हो जाती है, गिफ्ट में मिल जाती है. So if you are like preparing for IAS or anything you want in your life, everything absolutely possible, but only thing that you have to check it that really you are passionate about this or not. क्योंकि यहाँ पर अगर आपने किसी के ड्रीम को कॉपी पेस्ट किया है, then it is like very tough that the things will move in our life. अगर किया भी है तो take those things with complete awareness and alertness. ठीक है? अगर क्योंकि किसी उस फील्ड में कमाल कर दिया और आपने उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की तो वो कमाल नहीं होगा, शायद कुछ और हो जाएगा. क्या होगा, शायद आप सेंस कर पा रहे हो. ठीक है? सो दैट. एंड नेक्स्ट मूव टू द सेकंड डी. एंड आपने ऑलरेडी गेसेस बना रखे हैं, मैं यहाँ पर भी टाइम सेव करने के लिए लेट मी टेल द सेकंड डी इज. एक और गेस. Determinant. It will come. It Discipline. will come. But second is somebody told some direction. Yes, ma'am. So it can be direction or destination. It means Okay. you should be knowing exactly where you want to reach. You should have a very, very clear goal ready with you. ठीक है? अगर आपका गोल क्लियर आपके सामने है, then every cell of your body and every neurons in your mind, your brain supports you completely to reach that goal with full potential. इसको थोड़ा आप अच्छे से एनालाइज करना. इसीलिए लोग फेल करते हैं कि आधा अधूरा मन लेकर काम करते हैं और बीच में अटक जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एंड माइंड उसको सपोर्ट नहीं कर रही है पूरे तौर से. You have a lot of potential, right? अभी आपने भी सोचा human brain has immense potential, but we are not able to tap it. Why? Because we are not have clear goals with हमारे in front of us. So what is the job? You should have very clear goals. ठीक है? Desire है, एक थोड़ा vague picture है, but अब इसको more clarity के साथ लाना है, तो you should have a very clear goals. And next, for example, अभी ताजमहल पे suppose किसी को भी आना है, ताजमहल में आने पर पहुंचने के लिए suppose somebody, some tourist coming to India, how that person will reach to Taj Mahal? First, the person must have the desire to see Taj Mahal. नहीं तो he will come from the nearby and वो आगे बढ़ जाएगा, because I'm not interested even see it. कुछ shopping करेगा, anything he will do and he will go because he doesn't have the desire. But that desire is the one mandatory thing. And second, he must have a complete address of Taj Mahal. उसको पता होना चाहिए कि किधर से जाकर exactly वहां है. बट अगर कुछ दूसरी सड़कें पकड़नी है तो he will reach somewhere else. ठीक है? छोटी सी मिस्टेक होगी, अगर जाना है right and he will take the left, he will reach somewhere else. So you like na person must have one clear desire, and second, he has a complete address. It's same thing happens in a career journey. आपको कुछ भी करना है, desire must है, और क्या exactly करना है. ठीक है? कि अभी आपके साथ जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ में वो शायद रेलवे को भी तैयारी सोच रहे होंगे कि इसी आसपास के सिलेबस के साथ और कौन कौन सी तैयारियां पॉसिबल है, वो रेलवे को भी टारगेट कर रहे होंगे. साथ में अगर बीएड करा है किसी ने तो वो सोच रहे होंगे कि केंद्रीय विद्यालय का जिस समय रिजल्ट आ जाएगा, वैकेंसी आए, लेट मी ट्राई दिस ऑल्सो. साथ में एडमिशन भी कहीं ले रखा होगा, लाइक प्लान बी शुड बी रेडी विद. आई थिंक यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम टेलिंग विद. यस. और ये सब लोग करते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो डिजायर क्लियर नहीं है, वो गोल्स क्लियर नहीं है. तो आफ्टर दिस today's session, try to work out on those small dots. It is going to help you a lot.
मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि उसे आप कर ना पाओ, ठीक है। एंड थर्ड डे इज डिटर्मिनेशन, somebody told me, and thank you for your answer. Third is determination. Time is yes. डिटर्मिनेशन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. I think all of you heard the story of in Mahabharata. Guru Dronacharya asked his शिष्य पांडवा कि एक चिड़िया की आंख, वहां चिड़िया रख दिया और उसकी आंख को भेदना है. डू यू ऑल ऑफ यू रिमेम्बर द स्टोरी? बचपन से हमने सुना है, अपने अपने सिलेबस में पढ़ाई भी करी है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. अभी ये बताओ, Guru Dronacharya has given the task to everybody, all five. ठीक है. And now what he's doing, he's asking the question to everybody one by one. You know what he was asking? Yes, He ma'am. was asking, क्या दिख रहा है तुम्हें? और सबका अपना अपना आंसर है. Somebody is telling, yes, I'm seeing the bird's eye, I'm seeing trees, I'm seeing even the Guru Dronacharya, you, many more things. सबने अपना अपना आंसर में कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करके बोला. बट डू यू नो द आंसर ऑफ अर्जुना? कोई बताएगा अनम्यूट करके? अर्जुना ने क्या आंसर करा था? कोई एक जन अनम्यूट करो और आंसर दो. कोई एक जन भी गेस करो. थोड़ी थोड़ी मैं कोई एग्जाम ले रही हूँ, पास या फेल होने वाले हो. यस, पक्षी की मैम वो आंख दिखाई दे रही थी सिर्फ उसे. correct. And thank you Mamta for your answer and your active participation. Yes, अर्जुना टोल्ड, मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, मुझे आप भी नहीं दिख रहे हो. व्हाट एन अमेजिंग आंसर. नहीं लगता है कि कितना खूबसूरत एंड करेक्ट पिन पॉइंटेड आंसर है? वो बोलता है गुरुजी आप भी मुझे नहीं दिख रहे हो. तो जस्ट इससे आप ना, इस स्टोरी को मैं बहुत सिंपल बचपन से सुनी हुई स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई है. आप इसको एनालाइज कर लोगे ना और अपने लिए इस्तेमाल कर लोगे तो बस कमाल हो जाएगा. मैं इतना ही कहूंगी. आप इसको कहानी के ऊपर ना, इसके मोरल ऑफ द स्टोरी खुद निकालना एंड आप इस पे देखो काम करके, क्योंकि सारा. अब बताती हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ अभी अर्जुना ने अभी तक चिड़िया की आंख को भेदा भी नहीं था, लेकिन बिफोर दैट गुरु द्रोणाचार्य टोल्ड कि ओनली अर्जुना इज गोइंग टू कंप्लीट द टास्क. अब बताओ, कहीं अभी तो एग्जाम का पेपर ही दिया है, आंसर शीट भी नहीं भरा है, और बस इन एडवांस बता दिया गया कि हु इज गोइंग टू टॉप. अब बताओ क्यों? सिर्फ उसके आंसर की वजह से. आज आप भी अपने लिए बता सकते हो कि मैं इस एग्जाम में क्रैक करूंगी या करूंगा या नहीं. इट डिपेंड्स ऑन यू. इन योर हार्ट इट इज ऑलरेडी देयर, आंसर इज देयर. अब इसको आप फिगर आउट करो. अपने आप को ना गुरु की नजर से देख लो, खुद ही गुरु बनो, खुद ही शिष्य बनो, एनालाइज करो कि क्या एक गुरु मुझे देखकर बोलेगा कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा या नहीं करूंगा. जो भी आपने रखा है अपने लिए गोल, थिंग्स कैन बी टोल्ड इन एडवांस. जैसा आपका चल रहा है तैयारी, जिस लगन से आप चीजों को कर रहे हो, ये एडवांस में बताई जा सकती हैं. ठीक है. सो आज से डिसीजन ले लो. इस वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन, वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, you must have a focus like Arjuna. And how to develop this focus? Now it's a very big challenge, definitely. But yes, I told, impossible तो नहीं है. अगर क्रैक करना है तो लाना ही पड़ेगा, और जिन्होंने लाया है उसको तय है 100%. आप जाकर इंटरव्यूज सुनो, टेड टॉक सुनो, जिन्होंने इस चीज को किया है, उस फोकस को लाया है. किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उनके पास फोकस के अलावा कुछ था नहीं, वट एवर द रीजन मे बी बिहाइंड, लेकिन जिनके पास ये फोकस था, दे हैड डन इट. ठीक है. तो आज मैंने 3D बहुत सिंपल बातें बताई है. सिंस इट वाज अ टुडे इंट्रोडक्टरी क्लास, जहां मैं अभी फर्स्ट टाइम आई एम कनेक्टिंग विथ यू, मैं बहुत टेक्निकल बातें भी नहीं बताई हूँ. मे बी आई विल ट्राई टू फिनिश.
अगर कुछ बच भी जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू कम इन कमिंग सेशन, हम उसको चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. डू यू थिंक these things what I shared with you helped you, are going to help you? Unmute and tell me. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It's ma'am. going to help. I think. Okay, thank you so much. So keep these things whatever like you learn from your. अभी टाइम होता तो मैं पूछती कि आपकी इसमें क्या लर्निंग थी, क्योंकि सबने कुछ अलग अलग पॉइंट अपने लिए चूज किया होगा, ऐसा नहीं कि सबका सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं एग्जैक्टली टॉपिक पे. करियर काउंसलिंग इज द टॉपिक फॉर टुडे. बट मैंने जो बातें की इट वाज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, ये टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था. इट वाज नॉट द टेक्निकल थिंग्स आई शेयर्ड. अब हम थोड़ा टेक्निकल चीज में स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. बिफोर गोइंग दैट, इवन आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन स्टोरी व्हाई आई केम टू द ऑफ करियर काउंसलिंग. दिस करियर काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था. Nobody in my family background, none of my friends had this particular profession. How I came to this profession? Let me share my journey in a very brief way. When I was in class 10, I was like scored very good marks. I was a topper. Okay. Then in North India, maybe whole India, I can tell. If you score good marks or top or whatever, you are forced to take science as a stream. अगर कोई मेरी बात को समझ रहा है तो टेल मी यस. Yes, ma'am. साइंस लेना, it seems like you are more intelligent compared to those who are taking arts. Yes. So I was nobody forced me, but even like I was feeling a hidden kind of was, मतलब दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं था. Like with this mindset we grew कि you are intelligent, you are good student, you are supposed to take science. Okay, चलो यहाँ तक तो ठीक है, मैंने साइंस ले लिया. But somehow I knew I liked the subject psychology, but I didn't have any idea what the psychology, what I going to be. So कोई idea नहीं था. I stopped this and took science as a stream, went ahead. One day, like for 2 days, I went to my cousin's house and I saw one book of psychology in her desk, and that should be completed in 6 months. I completed that book in 2 days, and she told such a boring book, and you like holding the book day and night. And then I realized I'm so interested and passionate about this subject. किसी के लिए इतना बोरिंग है, मेरे को इतना पैशनेट मैं फील करी, 2 दिन में किताब ही खत्म कर दिया. तब मुझे लगा कि मुझे, और आई वांटेड टू नो मोर, लेकिन अब मेरे पास मैं उसकी बुक लेकर आ नहीं सकती थी. मैंने अपने लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत इधर उधर पढ़ाई करी. जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड. So in that same way I realized it, but not able to do anything with that. एक सेकंड my dear students. ऑल अदर स्टूडेंट्स, ये बेटर होगा आप लोग अपना थोड़ा चेहरा सामने में लेके आएंगे ना, वरना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि स्टैचू से बात करना है. इट्स वी आर हियर फॉर यू ना, तो आप प्लीज उस हिसाब से खुलिएगा. जब तक नहीं तो हम लोग कैसे आपको हेल्प कर पाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो नॉर्मल कैजुअल प्रोफेशनल वेबिनार नहीं है. वी आर अ फैमिली, और फैमिली में एक दूसरे को चेहरा दिखाने शर्माना नहीं चाहिए. प्लीज थोड़ा 1 घंटे के लिए बैठ जाइए आराम से, उसके बाद करते रहिए जो करना है. Prabhas, actually it should be complete exactly at 9 o'clock. That sorry, 10 o'clock. नो 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 मैम, यू कैन एक्सटेंड. Because many things to be shared, and मुझे लगता है कि ना अगर मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो I have to rush. Should I do that, और मैं और कुछ चीजें बाद में भी बता सकती हूँ. What हाँ you मैम, are आप like. बता सकती है, कोई बात नहीं. क्योंकि फर्स्ट सेशन में है, आप थोड़ा सा वो ओवरव्यू आप बता देंगे तो स्टूडेंट्स को बेटर रहेगा, जो आपने स्लाइड्स प्रिपेयर किया है ना. हाँ तो ओके, हाँ तो ओवरव्यू मैं दिखा देंगी अगर जितना टाइम परमिट करता है, क्योंकि ऑलरेडी 10 o'clock इज थोड़ा लेट ही है, तो बहुत मैं खींचना नहीं चाहूंगी. हाँ और हाँ. हम फिर तो मिल ही रहे हैं. ठीक है, यस यस मैम. चलो. और थोड़ा मैं ब्रीफ में उसको कर दूंगी. मे बी ओके. फिर कमिंग सेशन में और किसी को कोई और डाउट है तो वी विल गो अहेड विथ मोर क्लैरिटी. तो अभी मैं अपनी जर्नी को थोड़ा और ब्रीफ करके बताती हूँ. तो मैंने +2 कंप्लीट किया, एंड उसके आई वाज आल्सो नॉट इवन मच इंटरेस्ट अबाउट द सब्जेक्ट कि मुझे पढ़ना है.
टॉप क्यों करती थी? माई मदर वॉन्टेड मी टू बी अ टॉपर एंड फॉर दैट रीजन आई वॉज टॉपिंग, आई वॉज गिविंग माई बेस्ट, दैट वॉज वन रीजन. And after that I got admission in one of the best college in India for teaching, teacher training, that was Regional Institute of Education, Bhubaneswar, NCRT. And I wanted to prepare for NET, लेकिन since I got admission there, my parents told no, you go ahead, because यहाँ admission बहुत मुश्किल से मिलता है. And I told okay, क्योंकि मुझे तो कुछ क्लियर था नहीं, करना क्या है, जो सामने आएगा वो करना है, और चलो ठीक ठाक सब हो रहा है. I did that, completed my BSc. Then I went for I was doing BSc B.Ed, okay, integrated course. Then I wanted to do M.Ed. I wanted to leave science, but I wanted to continue with education. But it was mandatory for me, if I wanted to continue opt M.Ed, it was mandatory for me to have my MSc degree. अभी मैं बीच में फंस गई, अब मुझे MSc करना पड़ेगा, वो भी साइंस पढ़ना पड़ेगा, मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी साइंस में. यस, आई वेंट अहेड, डिड माय एमएससी इन बॉटनी विथ माइक्रोबायोलॉजी, कंप्लीट किया. देन एमएड किया सेम इंस्टीट्यूट से, एंड देन आई रजिस्टर माय पीएचडी फ्रॉम द सेम एजुकेशन. यहाँ तक जर्नी किया मैंने. देन आई गॉट अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट जॉब एज अ लेक्चर इन बॉटनी इन पटना. I worked there for 3 years. Then I got married to an IS officer. Sorry, it was the army officer. Then due to his posting, I left the job. Took 5 years career back. I had twins babies that time. Then I switched to, I joined as a assistant professor in B.Ed college. Okay. Then 5 years worked there. And after completing this many years in the field of teaching, I realized something is missing in my career journey. कुछ तो अंदर फील हो रहा है, बट एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि क्या है वो मिसिंग पॉइंट, क्या है वो गैप. कुछ वो पैशन नहीं आ रहा, वो खुशी थोड़ा थोड़ा शुरू में था, बट अब वो पैशन नहीं फील हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर, देयर इज नो क्लैरिटी फॉर मी. And with that state of mind, it was going for a month. And suddenly I was in a market and I saw कि एक I saw one lady, like there was that ma'am was there inside that chamber. Psychologist करके वहां पर उनके नेम प्लेट बना हुआ था. And there was written something like career counseling. And I caught this word, na career counseling, caught my attention completely. I thought कि मुझे पता नहीं क्या है, what I'm expecting कि career counseling में करते क्या है. Let me go explore the things. I went inside, booked my session, paid the money in advance क्योंकि she charged things in advance. And I thought, चलो, I feeling somehow happy कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ जो मेरा स्ट्रगल है शायद यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा. She told me, Asha, you have to go through 2 tests. I told yes, because मुझे तो कुछ चाहिए, अब मैं ready for that. When that she gave me 2 tests. One was the personality test. Second was the multiple intelligence test. I didn't knew those things before. कुछ भी मुझे इसका पता नहीं था. जैसा जैसा she was telling me, I was doing. Then I filled the answer sheet, returned to her, and she asked me to come tomorrow, next day. I went with a lot of excitement. My report was ready, and I was sitting with her, and she was sharing things about me and many things about me, and like then I came to know why I was feeling so sad inside in my heart. वो रीजन उस दिन मुझे समझ आया, और एक डिफरेंट दुनिया मुझे समझ आई मेरे खुद के लिए. शी वाज शेयरिंग, मेरी पर्सनालिटी का पूरा एनालिसिस किया, एंड दिस शी टोल्ड मी, मुझे बहुत सारे करियर ऑप्शन मैंने बताया नहीं था एक्चुअली कि आई वाज इन द टीचिंग फील्ड. आई डिडंट टेल हर, वांटेडली आई डिडंट टेल हर. शी वाज गिविंग द डिफरेंट करियर ऑप्शंस, एंड शी आल्सो टोल्ड मी, यू कैन बी अ गुड टीचर. But you know, Asha, if you want to excel, you want to be feeling so content and fulfilling, if you will switch. No, she didn't tell me that. I didn't tell her कि मैं teaching में हूँ. She told me कि अगर आप counseling field को opt करते हो ना, you are going to like enjoy your profession and you are going to earn also through that a lot.
मैंने इसके बारे में, इस चीज के बारे में कभी पहले नहीं सोचा था. आई नेवर न्यू अबाउट दिस, नेवर थॉट अबाउट दिस. आफ्टर मीटिंग हर, अब मैं सोच रही हूँ कि हाउ आई विल मैनेज बीइंग इन दिस जॉब विथ माय फैमिली. क्या करना है, कैसे होगा. आई एम नॉट अ स्टूडेंट. मैं जो पढ़ाई करने के लिए जा नहीं सकती ऑन अ रेगुलर बेसिस. व्हाट टू डू नाउ. देन एग्जैक्टली दैट ईयर कोरोना हिट और सब कुछ बंद हुआ घर में बैठकर. एंड जो ऑफलाइन चीजें भी थी ना, वो सब ऑनलाइन बन गई. And I completed my master in counseling, and apart from that, I completed my certification in career counseling. जो मेरे दिल की तमन्ना थी वो पूरे से पूरी हो गई. Now I had a master degree in counseling. क्योंकि वो मेरी दिल की चाहत थी. मैंने पहले भी बोला था, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहोगे ना, पूरी कायनात उसको पूरा करने में आपके साथ लग जाती है. That happened with me, and that's why I always tell it with confidence. ठीक है, with a lot of assurance. So that journey was very so amazing for me. And उस दिन मुझे समझ में आया, and these two tests what she shared with me, that come under the umbrella of psychometric test. ठीक है, many tests were there, लेकिन I took these two tests and it helped me a lot. उस दिन के बाद मुझे समझ आया कि जब ये टेस्ट मुझे इतना हेल्प कर सकता है, तो पता नहीं और कितने लोग मेरे जैसे स्ट्रगलर होंगे, जिसको कितने कंफ्यूजन होंगे, और क्या वो टेस्ट उन्हें क्या कितना हेल्प करेगा. फिर मैंने उसके ऊपर चूंकि डीप पढ़ाई करी, तब समझ में आता है मुझे कि अगर ये चीज जो स्ट्रगल मेरा क्लास 10th में था, एक्चुअली आई वाज वांटेड टू हैव साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट. वो अगर मुझे कभी इसके बारे में कोई मुझे शिद्दत से बताया होता, तो शायद मैंने चलो प्लस टू तो हटा दो, वो कर भी लिया होता, तो एटलीस्ट बीएड, पूरा बीएड से लेकर जो पीएचडी तक मैंने खींच लिया. उस समय को, उस पैसे को, उस एनर्जी को मैंने साइकोलॉजी में लगा दिया होता, तो कितना अच्छा हुआ होता. और यही मैं चाहती हूँ कि जो चीज आज मैं क्या कर रही हूँ, आज तो मैं वही करी जो मैं करना चाहती थी. आज मैं माइक्रोबायोलॉजी से लेकर कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड के साथ रिजोनेट नहीं होती है. आई एम द पर्सन हु लाइक टू इंटरेक्ट विद द पीपल. और माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में रहकर आई एम सपोज टू बी इनसाइड द फोर वॉल्स. मैं तो पागल हो जाऊंगी इवन व्हेन आई थिंक अबाउट इट. ठीक है, सो this is a journey you can analyze again, once again, and try to figure out and find out the nugget for yourself. ठीक है, अब हम एग्जैक्टली करियर काउंसलिंग के स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल पार्ट पे आएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रेडी फॉर दैट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. We're We are ready. ready for that. ओके, थैंक यू सो मच. Yes. That is absolutely. सो नाउ यू न्यू अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट. बहुत लोगों ने कुछ सुना भी होगा, और सुना है साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, ये No, No, वर्ड. ma'am. ओके, करियर काउंसलिंग के बारे में सुना है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I ओके, have heard बट it. एग्जैक्टली ये क्या होता है, कैसे होता है, किसी को कोई आइडिया? No, ma'am. ओके, आज मैं तो आपको मुझे एक तो नहीं. छोटी सी जर्नी कराती हूँ, और आधा करियर काउंसलर तो मैं आपको बना दूंगी. ठीक है, चलो, लेट मी शेयर दिस स्लाइड एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, सो दैट ना थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन तो जरूर है, बट चलो आज मैं ना आउटलाइन तो जरूर दे. Give me a second. Can you give me a few seconds? Just 1 minute. Really sorry for the interruption. Okay, so let me share my screen.
This screen is completely visible to all of you. Yes, Yes, ma'am. ma'am, it's visible. Yes, Okay. ma'am, it's visible. मैं इसको थोड़ा 5 में करना चाहती हूँ. ओके, सॉरी. तो अनलॉक योर राइट करियर फॉर ब्राइट फ्यूचर. अब मैं ये बात आपको कहूंगी तो पूरी बात समझ में आएगी. ठीक है, अगर ब्राइट करियर ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो यू मस्ट हैव राइट करियर. अगर आपके पास राइट करियर है, राइट जॉब है, तो दुनिया की बाकी सारी चीजें तो पीछे पीछे चली आती है. समझ में आ रही है बात? ओके, लेट मी मूव अहेड. अभी इस वेबिनार में अब जो हमारे पास समय बचा है उसमें मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी कि व्हाट इज साइकोमेट्रिक करियर असेसमेंट टेस्ट, इसका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हाउ डज साइकोमेट्रिक टेस्ट फंक्शन, एंड व्हेन शुड यू टेक दिस टेस्ट, एंड हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट. ठीक है, ओके. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्योंकि ना हमारी सोसाइटी में कुछ भी अगर साइको वर्ड से रिलेटेड चीजें आती है ना तो लोगों का माइंड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. नहीं, आप स्कूल में भी मजाक में, अरे साइको में, मजाक में आप यूज करते हैं साइको है. एंड दैट्स व्हाई कभी हमने बोला कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कराने जा रहे हैं तो समझेंगे कुछ नहीं और सोचेंगे कुछ और ही. ठीक है, तो दैट लाइक ना जो मिथ है वो आप तो कम से कम क्लियर हो जाओ. साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है इट्स नथिंग बट अ टूल. It helps you to identify your strength. ठीक है, and when your strength is very much clear, that helps to shape your career path. बहुत सिंपल. अभी इसका जो मैंने बात करी उसके रिगार्डिंग कि द साइकी मीन्स माइंड एंड मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, बस इतना ही है. ये हमारे माइंड को मेजर करने का एक टूल है. ठीक है, क्या टूल है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे. अभी नेक्स्ट कम द इम्पोर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड एक्चुअली. ठीक है, आई विल टेक टाइम इन इवन आई नो. प्रभास, कैन यू टेल मी कितना बजे तक हम मैक्सिमम खींच सकते हैं? 10:30. कितना? हाँ, 10:30. ओके, तो मैं इसको 10 मैक्सिमम 10:15 तक लूंगी. ठीक है, आई विल नॉट टेक मोर देन. ऑल द स्टूडेंट्स आर अग्रीइंग फॉर दैट कि दे कैन स्टे टिल 10:15. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, चलो. ma'am, no problem. चलो, थैंक यू सो मच. एक्चुअली मुझे ही हरी है बट इट्स ओके. अभी सारा पॉइंट नहीं रखना, एक पॉइंट रखना. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टाइप. अभी आपको ये बात समझ में पूरी से तो नहीं आएगी कि व्हाट इज इंटेलिजेंस टाइप, व्हाट इज पर्सनालिटी टाइप. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्लास फॉर दिस to help you understand in details what is intelligence type and personality type. एक पूरा क्लास लगेगा. ठीक है, और ये बहुत लाइक वैल्यूएबल क्लास होगा. ठीक है, एवरी क्लास in coming days is going to be very very like valuable. तो try to join all the time. बस समझने के लिए कितना ही बताऊंगी. I'm giving asking one question. Tell me, who is more intelligent, सचिन तेंदुलकर और आइंस्टाइन? Einstein. चलो, अदर्स बताओ अपने अपने आंसर्स. आइंस्टाइन. अदर्स जिन्होंने इतना ही बताना है, उतना के लिए अनम्यूट तो कर ही सकते हो. इट डिपेंड्स ना कि इंटेलिजेंस किस बेसिस पे चेक कर रहे हैं. ओह, थैंक यू सो मच Yes. फॉर गिविंग अ डिफरेंट आंसर. करेक्ट. अदर्स, अदर्स भी तीन ही लोगों का आंसर आया. और लोग कितने बचे हैं यहाँ पर? एक्चुअली स्लाइड चल रही है तो मुझे दिख नहीं रहे पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स. चलो, सो मे बी यू हैव डिफरेंट आंसर. और कुछ यहाँ राइट और रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अभी when we don't know, मुझे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो क्या सही और क्या गलत, सब ओके है. पहले जमाने में, अब ले लो, पहले ही जमाने जनरली जिसका मैथ अच्छा है वो इंटेलिजेंट पर्सन है. यही है ना, यही सुना होगा आपने, हम सबने सुना है. अगर मैथ लेकर किसी ने पीएचडी करा तो वो समझो इक्वल टू आइंस्टाइन है, और वो बहुत इंटेलिजेंट है. हमारे केस में जीनियस मतलब उसका मैथ अच्छा होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमारे टेस्ट भी डिजाइन किए जाते थे. अगर किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट करना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट में भी मैथ ही रहता था मोस्टली.
बट अब के सिनेरियो में आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रूफ करता है कि दिस वाज नॉट द राइट वे टू जज एनीबॉडीज इंटेलिजेंस. ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ एंड देन यू टेल मी द आंसर कि आपने अपने अपने आंसर आपके पास है. कुछ ने बताया, कुछ ने नहीं बताया, बट ओके, यू कैन आंसर योरसेल्फ लेटर व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ब्रीफली. इंटेलिजेंस टाइप जो है इसको मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं. एंड अंडर दिस एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज हाउ मेनी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. कितना मैंने बोला? 8 type. 8 टाइप के इंटेलिजेंस हर इंसान में होते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंस उसमें डोमिनेंट होता है, एक या मैक्सिमम समटाइम्स 2, वो डोमिनेंट होता है. अब वही जो डोमिनेंट है उसको फाइंड आउट करना होता है. वहीं पर आपका सारा खेल जो गेम प्लान है हिडन है. सचिन तेंदुलकर के केस में जो इंटेलिजेंस टाइप था वो उसके फील्ड के लिए आउट ऑफ 8 में 1 जो था वो, अभी मैंने नाम नहीं बताया, वो 8 का जो नाम है, क्या कैटेगरी है, किसके क्या क्या डिटेल्स है, कुछ नहीं ला रही हूँ अगेन. मैंने बताया एक पूरा क्लास है. सो एक फील्ड में सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट था. उसकी मैथ अच्छी नहीं थी, बट जिसमें वो हाईएस्ट था वो उस आउट ऑफ 8 में आता है. आइंस्टाइन भी सिर्फ अपने उस एक फील्ड में हाईएस्ट स्कोर करता है. तो नाउ वी कैन टेल कि आइंस्टाइन वाज इंटेलिजेंट इन हिज फील्ड, सचिन तेंदुलकर इज इंटेलिजेंट इन हिज फील्ड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. गौरी, पुष्पलता और जितने कैमरे में तो इतने लोग मुझे दिख रहे हैं और जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बताओगे आप आपका Yes, फील्ड ma'am. ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? डू यू नो और डू यू वांट टू नो? मैंने बताया इस चीज को आइडेंटिफाई करने में सारा आपका गेम प्लान ना हिडन है, एक लॉक्ड है. अगर आपने इसको क्रैक कर लिया, अपने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को समझ लिया, नहीं तो वैसे ही क्षमता सचिन तेंदुलकर की उस इंटेलिजेंस में थी और उससे अगर मैथ बनवाने की रात दिन कोशिश करते रहते तो कभी वो मैथ में पास होता या समहाउ पास होता या समहाउ एवरेज आता. दैट्स ऑल. वो कभी सचिन तेंदुलकर, वो आइंस्टाइन तो कभी नहीं बनता, क्योंकि गॉड हैज नॉट डिजाइन हिम टू बी आइंस्टाइन. ठीक है, वी शुड बी थैंकफुल टू द फादर, टू द पीपल जिनके वो सराउंडिंग में थे. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गिवन दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन हिज इंटेलिजेंस. तो अमेजिंग. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पहले समय की बात है. आज तो कम से कम एटलीस्ट यू पीपल आर हियरिंग दिस वर्ड्स, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग, so you are having a kind of awareness, so you can use this thing. ठीक है, तो same thing it happens in the case of intelligence and also with the personality type. Same as I told for the intelligent test, it happens with the personality कि every individual has 6 type of personality and उस out of 6 में 1 will be dominant and you have to figure it out which particular type of personality you are carrying. ये 2 चीज मैंडेटरी है करियर को सही तरीके से डिजाइन करने के लिए. कहते हैं ना ठोक बजा के, लेकिन ना कहीं कुछ क्रिस्टल क्लैरिटी अगर चाहिए, क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर में बनना है या जो भी जॉब आप ऑप्ट करना चाहती हो इन फ्यूचर, अगर किसी को डिफेंस में आना है, even they test it knowingly, unknowingly, directly or indirectly. Without this test, they don't take people inside their field, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो जाएगा. मछली को हम पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बोल सकते, बंदर को पानी में तैरने के लिए नहीं बोल सकते, और हमने अगर बोला तो क्या रिजल्ट है वी नो वेरी वेल. ठीक है, गॉड एंड द नेचर हैव डिजाइन थिंग्स इन अ सच अ वे. ओके, अभी नेक्स्ट आता है, इसके डिटेल्स में हमने बताया, विल शेयर इट. इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, लर्निंग स्टाइल, ये सारी चीजें हम इस टेस्ट से असेस कर सकते हैं, क्योंकि आई वेंट टू द टेस्ट एंड आई नो दैट डिटेल्स हाउ इट हेल्प मी. और अब तो आई एम इन द फील्ड ऑफ दिस, so I know the even minute details to understand the skills and hidden talents. अब इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ. एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है. मोहम्मद
Khatani, you search his name in the Google or YouTube. He was an international public speaker, I think, of 2017. ये public speaker international level पे, जो कि पूरी दुनिया में he was the number one. That particular guy never spoke on a stage even a single time till his college. समझ रहे हो? आपको तो लगा होगा कि बचपन से ही प्रैक्टिस करता होगा, माँ बाप ने बड़ा कोचिंग दे रखा होगा और उसने जाकर इंटरनेशनल स्पीकर बन गया. नो माय डियर फ्रेंड, व्हाट रीजन वेयर देयर, बट व्हाट एवर द रीजन, वो उसकी वजह से वो बोलना बंद कर दिया था. बट दैट पोटेंशियल वाज देयर, वो सीड था उसके अंदर. कॉलेज में विथ व्हाट एवर द रीजन, यस इट डिडंट हैपन इन अ डे. उसने भी कुछ कोचिंग वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग की ज्वाइन करी होगी. एंड बट व्हेन द दैट परफॉर्मेंस वाज दैट ही स्टूड टॉप फर्स्ट. ओके, पूरी दुनिया अब उसको जानती. मेरा कहने का मतलब है स्किल्स आर देयर, टैलेंट्स आर देयर, बट उसको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट का. अगर आप उसको जान गए, देन व्हाट इज योर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू हैव टू पॉलिश इट. अगर आपने उसको पॉलिश नहीं किया तो वो धीरे 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 वो डोरमेंट हो जाएगा. और अगर उसने पॉलिश कर दिया तो तनिष्क में जैसे हीरा सजा कर रखा जाता है, लाखों करोड़ों के बन जाओगे, और पॉलिश नहीं किया तो लाखों करोड़ों की भीड़ में खो जाओगे. नाउ चॉइस इज योर्स. ठीक है, अभी एक चने की सीड को आप बॉटल में बंद करके रख दो या मिट्टी में डालकर उसको नर्चरिंग करो, क्या रिजल्ट आएंगे? वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी. यस, नाउ एनालिसिस पार्ट मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया. टेक दैट एग्जांपल इन दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैलेंट और स्किल. Next come to find out the right and most suitable subjects and their combination which will lead to the right career. अब ये जो एग्जाम्पल, जो ये पॉइंट है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी 10th का एग्जाम दिया है. अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए ज्यादा लाइक बेस्ट फिट होता है ये एग्जाम्पल. अब तो आप बड़े हो गए, ऑलरेडी स्टेज से बाहर आ चुके हो. सो अगर आपने देखा होगा, जैसे फॉर मेरे लिए खुद के लिए मुझे ये गाइडेंस मिला नहीं उस समय. जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या आगे लेकर पढ़ाई करनी है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, अगर साइंस भी लेना है तो मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, अगेन इट इज अ कंफ्यूजिव स्टेट. ठीक है, तो कैसे आप उस स्टेट को ओवरकम करोगे? क्योंकि दो लोग बैठ गए, कुछ ना कुछ बातें करी और कुछ हमने डिसीजन बना लिया. डू यू थिंक दिस इज द राइट वे? किसी अपने बड़े से बात कर लिया, घर में कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, उनसे कनेक्ट कर लिया और उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, एंड उनके बिना पर आपने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लिया. बट ये एक्चुअली अपने आप में बड़ा ही रिस्की गेम प्लान हो जाएगा, क्योंकि जिसने बताया उसे आपके बारे में डिटेल्स नहीं पता. आप हो कौन, आपकी डिजायर्स क्या है, इन फ्यूचर आप किस में बेस्ट कर सकते हो, इस पे एनालिसिस हुई ही नहीं. ठीक है, क्या सोसाइटी में चल रहा है, अभी क्या ट्रेंडी है, ये चीज चल रही है और उसके हिसाब से आपने डिसीजन कर लिया. अभी एमबीए का ट्रेंड है, ठीक है, सभी एमबीए कर रहे हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, तो सारे लोग क्या एमबीए से पैसे कमाने लग गए? जिनको कमाना था वही कमाते हैं, बाकी लोग ना रास्ते पे ही जैसे घूमना है वैसे घूम रहे हैं. सो इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कॉपी पेस्ट विल नॉट वर्क इन द व्हेन यू आर चूजिंग द करियर. बहुत अलर्ट होके चूज करना है. पूरी जिंदगी की डिसीजन इस पे आपकी, पूरी जिंदगी आपकी उसके ऊपर डिसीजन पे निर्भर करती है. ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड. तो 11th में जो स्ट्रीम सिलेक्शन है, इन दैट पर्टिकुलर प्लेस इट विल हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस इन करियर सिलेक्शन. यस, तब से हम यही बातें कर रहे हैं, तो और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ. ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पर ये, जैसे 11th में एक बच्ची आई, उसे ये पता ही नहीं चल, लेकिन ना फर्स्ट ईयर शी टोल्ड मी, लाइक +2 के 11th में, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. इन सेकेंड ईयर बोलती है अपने पेरेंट्स को, आई वांट टू बी अ लॉयर. अभी बताओ पेरेंट्स परेशान होंगे कि नहीं होंगे? अब पेरेंट्स परेशान हो गए कि ये बच्ची तो कुछ खुद के लिए सही डिसीजन नहीं ले, बच्चे भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान.
तो ऐसे सिनेरियो में करियर काउंसलिंग बहुत मदद करता है। और वो बच्ची बताओ नीट की प्रिपरेशन करेगी या क्लैट की प्रिपरेशन करेगी, दो प्रिपरेशन आप कर नहीं सकते, इंटायरली डिफरेंट सिलेबस एंड करिकुलम। और दो पैर पे नाव रखोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जनरली हम ऐसा करते हैं सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि क्या करना है वो क्लैरिटी हमारे पास है नहीं, जिसकी वजह से। एंड उस बच्ची की जब करियर काउंसलिंग की तो आई केम टू नो कि शी वाज द बेस्ट फिट फॉर बीइंग अ लॉयर। क्यों एंड ऑल दोस थिंग्स डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू इन डिटेल्स इन कमिंग सेशंस। तो इस सिनेरियो में, कंफ्यूजन में, स्ट्रेस में, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर अ सर्टेन रोल और नॉट। ये जनरली कहाँ पर होता है, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय रखती है तो वो चेक करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है कि नहीं। आज मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, आई एम नॉट कि आप यूपीएससी प्रिपेयर करें तो एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बट क्या है ना, आज आप जनरल समझ लो पूरी बात को, एक पूरी कहानी को समझ लो, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है आप उससे अपने लिए निकाल लो, ठीक है। टू सेव द टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर मुझे पता होता तो मैं टाइम को, मनी को और एनर्जी को बचा ली होती। ये पूरा मैं ना बीएससी से लेकर पीएचडी तक डिग्री को गायब ही कर दी होती, क्योंकि मैंने बाद में एमएससी इन काउंसलिंग कराई, तो जो वहां पर मुझे टाइम एनर्जी गया वो मुझे, मेरी जरूरत नहीं थी, बट लैक ऑफ क्लैरिटी आई डिड दैट। ओके, एनी क्वेश्चन टिल यहां तक? कोई क्वेश्चन और एनी, किसको कुछ पूछना है? नहीं तो चलो आफ्टर दैट अगर क्वेश्चन है तो कीप समवेयर यू राइट इट, यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड या मे बी नेक्स्ट सेशन Ma'am, अगर टाइम मिल पाओगे। just one. Can you please turn the previous slide? या श्योर। इसमें जो टेल मी। सेकंड वाला जो पॉइंट, सेकंड लास्ट वाली जो पॉइंट है ना, टू डिटरमिन वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर अ सर्टेन रोल और नॉट, दिस आई थिंक कि यूपीएससी का जो करेक्ट। इंटरव्यू होता है वो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली वो करते हैं। और ये चीज जो कैंडिडेट्स को, आई मीन मतलब ये पता ही नहीं होता, और फिर मतलब बाकी सब चीज को देख करके ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख करके, नहीं मेरे को आईएएस ही बनना है, अब वो ट्रेड्स है नहीं, पर्सनालिटी ट्रेड्स वो होती नहीं है, और फिर ये इस चीज में कूद जाते हैं। आई थिंक ये इसलिए क्या मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे आईएएस, लग जाते हैं। बहुत सही बताया आपने। हमारे लास्ट डिस्कशन में हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आई डोंट नो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स वेयर देयर। तो ये बहुत सही है, जितने भी, डेफिनेटली आईएएस, आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी जितने सिलेक्शंस होते हैं, जितने फ्रॉम लाइक थोड़ा लोअर से लेकर, जवान से लेकर हायर, सारे जगह यहाँ डायरेक्ट होते हैं, बहुत जगह ये इनडायरेक्ट होते हैं, लाइक वर्बली दे आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, बट यहाँ पर ये बहुत डायरेक्ट ये टेस्ट होते हैं। यू हैव टू गो थ्रू द टेस्ट एंड दैट लाइक फाइनल स्टेज पे टेस्ट देकर ही आप क्वालिफाई हो गए, आपने जितने स्टेजेस निकाल लिए, डन। बट ये स्टेज मैंडेटरी और यहीं पे आप बहुत लोग छट जाते हैं। जिन्हें पता होता है साइकोमेट्रिक का वो थोड़ा ब्लफिंग करके ना, सॉरी कुछ हाँ कर लेते हैं, बट जो एकदम इग्नोरेंट होते हैं वो यहाँ पर अटक ही जाते हैं, क्योंकि वो, मैं तो सही बोलती हूँ कि जिसको नहीं जाना है, जो राइट फिट नहीं है ना, दे शुड नॉट एंटर इन द रॉन्ग फील्ड। इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, लाइक आई कांट इमेजिन। जो आर्मी के अंदर आए हैं, जो ऑफिसर्स किसी तरह से इधर उधर करके भी कैसे भी आ गए, एंड नाउ ना, जितना द टफ काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे गो थ्रू, वो वही सस्टेन कर सकता है जो उसके लिए बना है। अदरवाइज ना अब क्या ही बताऊं, -40 डिग्री में रहने के लिए कैपेबल वही है जिसके अंदर वो पैशन है। नहीं तो चाहते हैं कि आज चाहे तो मैं दुनिया छोड़ दूं या इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूं, और दोनों रास्ता आसान नहीं है, ठीक है। जस्ट थोड़ा लाइटर नोट में बोल रही हूँ। ओके, तो प्रभास, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू अगेन टेक वन सेशन की एक आईएएस बनने की क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है। जब मैं इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में डिटेल्स बताऊंगी ना, तो उसमें बहुत क्लियर आएगा कि किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। कुछ तो नेचुरल होता है लोगों में, बट जब हमें ये पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा हम अपने आप को ना डिजाइन कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, समझ आया। उस पर हम मेहनत करके अपने उस जो भी मार्किंग आएगी ना,
वो हम थोड़ा जरूर बढ़ा सकते हैं। इंटायरली तो पूरा पर्सनैलिटी चेंज होना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है, बट यस अगर किसी का 4 है तो 6 तक तो 7 तक तो जरूर जा सकता है, बट 4 को 10 करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बिकॉज इट्स अ गॉड लाइक डिजाइनिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. So definitely we'll go ahead with our explanation and a lot of examples and a detailed way. Okay, sir? Yes, ma'am. हाँ, we will एक पर्टिकुलर सेशन इसके ऊपर रखेंगे. हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे की चीजें ना जहाँ पर रिक्वायरमेंट है ना उसको स्पेसिफिक अलग तरीके से डिस्कस करें. आज तो मैंने बिल्कुल जेनेरिक बताया है कि एक आइडिया हो जाए कि होता क्या है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में होता क्या है. अपने समझो कि प्लान किया तुम, जब साइकोमेट्रिक टेस्ट है तो क्या, जैसे कि ब्लड टेस्ट ले जाते तो वो आपका ब्लड निकालते हैं, सैंपल लेते हैं, जाते हैं कहीं जमा करते हो, रिपोर्ट आता है. यस, यू नो दैट सिस्टम. यहाँ क्या होता है ये आपको शायद अभी नहीं पता हुआ डिटेल्स. पहले जब मैंने करवाया था तो दैट टाइम लिटिल डिफरेंट, दैट वाज एवरीथिंग वाज मैनुअल. लाइक कितना साल, 10 साल 8 साल पहले. बट अब एवरीथिंग सो लाइक ना वी आर सॉफ्ट, हर चीज में सॉफ्ट कॉपी ढूंढते हैं. सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट एआई ऑलरेडी एंटर्ड, तो ड्यू टू दैट एवरीथिंग बिकम लाइक सो इजी. इवन इसमें सबसे पहले क्या होता है, वी सेंड लाइक किसी भी करियर काउंसिल से आप कंसल्ट करते हो तो वो आपको एक लिंक शेयर करता है, जिस लिंक को जस्ट आप क्लिक करोगे तो टोटल 80 क्वेश्चन विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन आया. ठीक है, अब वन और हर क्वेश्चन के सामने लाइक 1 2 3 4 ऑप्शन विल बी गिवन. 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इसके डिटेल्स उस पेपर पे मेंशन किए रहेंगे. ठीक है, अब इन द सेम वे यू रीड द क्वेश्चन वन बाय वन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन 1 2 3 4 जो आपके लिए जितना नेचुरल आंसर आप दोगे, जो आप फील करते हो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, वही उसमें लिखना है. बहुत करेक्ट, बहुत ही करेक्ट रिपोर्ट जनरेट होता है. मतलब लोग चौंक जाते हैं उसके आंसर्स को देख के कि मतलब उसकी जो बच्चों होता है, सही में मैम आई एम लाइक दिस. क्योंकि मम्मी लोगों से भी ना, पापा से भी बच्चे अपने आप को छुपा कर रखते हैं. आई थिंक यू आर गेटिंग. वो अपने रूम के रियल में वो क्या है ना, पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं. वो इस चीज में रिवील हो जाता है. एंड देन लाइक ना पेरेंट्स बाद में मुझे कॉल करके बोलते हैं कि लाइक ना दे फील सो लाइक हैप्पी कि मुझे भी अपने बच्चे के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था. सो दैट्स व्हाई सो अमेजिंग एक्चुअली. उसके बाद क्या होता है, वंस यू आर रेडी विथ आंसर शीट यू सेंड इट बैक टू द करियर काउंसलर. वो करियर काउंसलर क्या करता है, उसको ना रिपोर्ट जनरेशन के लिए जो भी कंपनी से वो कनेक्टेड है वहां भेज देता है. विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एआई टूल्स दे डेवलप अ साइकोमेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट. उस टेस्ट रिपोर्ट जैसे जनरेट होता है वो कम बैक होता है वापस करियर काउंसलर के पास, एंड एक जूम मीटिंग के माध्यम से उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं. अगर ऑनलाइन करना है, अगर ऑफलाइन करना है तो हम हार्ड कॉपी उसका निकालते हैं, बैठ के 1 to 1 बात करते हैं. और एक एक पॉइंट को हम, जैसे आपका ना इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट के सारे रिपोर्ट्स में ना स्कोर्स आ जाएंगे, पर्सनैलिटी टाइप पूरे स्कोर्स आ जाएंगे. तो इट्स सो वंडरफुल, यू कैन एक्सप्लेन इट, अंडरस्टैंड. और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के बारे में विथ कंप्लीट एक्यूरेसी समझ में आती है. ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट जनरेशन हो गया. अब हमारा क्या है, रिपोर्ट एनालिसिस. मैंने वो भी बता ही दिया कि रिपोर्ट आएगा तो उसको हमने एनालाइज करना है. और एनालाइज करने में हमारे को क्या फिगर आउट करना है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप. जो मैंने पहले बताया था कि एक जो पर्सनैलिटी टाइप है डोमिनेंट है, समटाइम्स 2, उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट. और इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप, ये दोनों जो टाइप है ना, जो बताया था 1 1 डोमिनेंट होता है, 2 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 6. डू यू रिमेम्बर इट? याद है? वो Yes, हम ma'am. आइडेंटिफाई करते हैं इस जगह पे. और द मोमेंट वी आर रेडी विथ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की है क्या, उसके बाद करियर के डिफरेंट ऑप्शंस उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के लिए दिए जाते हैं. 100 से ऊपर भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे, आज तो और भी बढ़ गए हैं. क्या सारे को आप एक्सप्लोर करोगे? नो, यू विल एक्सप्लोर ओनली दोज करियर ऑप्शन जो आपके लिए बना है, जिससे आप रेजोनेट करते हो. तो वी गिव 5 ऑप्शन, 5 में we come to 3 and finally 3 to 1. This is the protocol we follow. ठीक है,
अंत में वी कम टू वन करियर ऑप्शन जो कि उसके लिए बहुत खूबसूरत सी बात। अब बच्चा इतना कैपेबल है कि वो अपने बारे में खुद डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके अपने बारे में पूरा क्लैरिटी है। अब वो अपने लिए परफेक्ट डिसीजन लेता है, उसको अपने बारे में पता है और क्या क्या करियर ऑप्शन है उसको भी बताया, उसके सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है हर करियर का उसको भी बताया। अब बच्चा खुद के डिसीजन ले पाता है। अगर नहीं ले पा रहा है देन वी हेल्प देम, और कलीग ना वी गो अलोंग विद द चाइल्ड। ठीक है, अब इसका जो क्या है, करियर सिलेक्शन, कनेक्ट द स्कोर टू फाइंड आउट विच करियर सूट्स देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, स्कोर्स जब आता है तो हर पर्सनैलिटी के लिए जो बेस्ट करियर उसको बताते हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया। ठीक है, अभी मैं इसको रिपीट भी नहीं करूंगी तो समझ आया। चलो नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ दिस टेस्ट। अब इसका जो राइट टाइम है ना, एनीबॉडी जो 4 कंप्लीट कर लिया है उसके लिए ये टेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि टिल 4 इयर्स एक पर्सनैलिटी होती है ना कॉन्फिडेंस। 7 में तो कुछ और एक्टर बोलेगा, कभी बोलेगा और कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वो अभी पर्सनैलिटी के डिफरेंट फेजेस उसमें जैसे वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं आई तो अब किसी भी एज 60 साल का जो आदमी भी अभी अपने करियर को रिटायरमेंट के बाद अपना करियर प्लान करना चाहे, दे कैन गो फॉर दैट। मेनी आर्मी ऑफिसर्स आफ्टर रिटायरमेंट दे गो फॉर दैट। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि मैंने सारी बातें ऑलरेडी बता रखी है। आई एम जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स हियर। चलो इसका मैंने खोल दिया। पहला है रीचिंग अ स्टेबल लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, जो अभी मैंने बताया 14 इयर्स, क्लास 8 ऑलमोस्ट इसी एज में होते हैं। तो क्लास 9 के बच्चों से हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज के एरा में मेडिसिन की तैयारी, आज की तैयारी बच्चे क्लास 9 से करते हैं। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट। यस, एंड दैट शुड बी डन। ऐसा कुछ नहीं है, Yes, क्योंकि अगर ma'am. आपको क्लैरिटी है तो आप उस चीज को ज्यादा फोकस करना अभी से शुरू कर दोगे। ठीक है, अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। बहुत लोगों ने किया है, जो टॉपर्स है आप उनकी इंटरव्यूज देखो, दे डिड दैट अकॉर्डिंगली। उन्होंने आर्ट्स वांटेडली लिया, 98% स्कोर किया, इसके बावजूद भी उन्होंने आर्ट्स लिया, क्योंकि मुझे तो आईएएस बनना ही है, तो क्यों मैं इधर उधर की चीजें लूं, बाद में ग्रेजुएशन में लेना है, अभी से ले लेते हैं, काम खत्म। ओके, सो भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इफ दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर कि क्या चीजें मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी बात कर रखी है। चूजिंग द राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 11 12 के बच्चे जो अभी 11 10th के एग्जाम के बाद जो स्टेट आता है जहां पर वो अभी स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स आफ्टर क्लास 12। अभी ग्रेजुएशन में भी आप चेंज कर सकते हो। अगर मुझे मतलब पता होता तो मैं साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में भी ले सकती थी, बट मुझे कोई आइडिया था नहीं तो मैंने नहीं लिया। बट my sister now she's an like cracked a BPC entrance exam. She changed her subject combination in graduation. Even she entered in graduation with science stream, but when she realized कि I am going to prepare for UPSC, उसने पूरा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत मेहनत लगी, आपको आसान नहीं होता है कि आपने साइंस लेकर एडमिशन फॉर्म में डाल दिया और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, बट शी डिड हर बेस्ट एंड शी वाज एबल टू चेंज हर फुल कॉम्बिनेशन। और जो जो सब्जेक्ट लेकर उसको पढ़ाई करनी थी उसने वो कॉम्बिनेशन ले लिया, एंड नाउ सी इज लाइक SDM इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, सो इट मे हैपन अगर आपको चाहिए क्लैरिटी तो। नेक्स्ट कम्स नैरोइंग डाउन द बेस्ट सुटेड स्पेशलाइजेशन। आप ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में जब भी आपको स्पेशलाइजेशन लेना होता है, लास्ट ईयर में ऑनर्स लेना होता है, अगर उसमें कंफ्यूजन है तो उस समय भी ये बहुत हेल्प करता है। और एक जो है, जो बहुत आज के एरा में बहुत प्रॉब्लम है, हमने पूरी पढ़ाई तो कुछ कर ली लेकिन अब उसके हिसाब से जॉब ही नहीं मिल रही है। पढ़ाई कुछ, काम कुछ और करना पड़ रहा है। तो व्हेन इंटरेस्ट एंड पैशन इज नॉट अलाइन टू द मार्केट नीड्स, अब आपने जो पढ़ाई की उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को आज मार्केट की जो नीड है उसके कैसे अपने आप को अलाइन करना है, उन सारी चीजों में आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट के बाद क्या और करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, उस सारी चीजों के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट हेल्प है। ठीक है, फिर बातें क्लियर यहाँ तक? चलो
अब ऑलमोस्ट डन है। कौन कौन इस साइकोमेट्रिक टेस्ट को इससे बेनिफिट ले सकता है? स्टूडेंट, ग्रेजुएट्स एंड प्रोफेशनल्स who are planning for career decision, who are confused and directionless, worried about their career, desiring to know about their intelligence and personality type. हम फ्यूचर एसेस करते हैं, वैसे लोग बाय शॉक, लाइक ना, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे गो फॉर दिस टेस्ट। तो वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं, बट यस, वी कैन गो फॉर दैट। एंड इसका और भी बहुत सारी चीजें, बट मैं सारा कुछ यहाँ पर नहीं ला सकती हूँ, बट मे बी स्लोली धीरे धीरे हम सारी चीजों को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। सो आई एम डन विथ माई पीपीटी। द चॉइस ऑफ करियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर पैशन एंड पर्सनैलिटी। Yes, thank you so much. I think I am done with PPT part. So, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। I know time is already running out. Otherwise, अगर हम नेक्स्ट सेशन में जुड़ते हैं तो वहां पर कभी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं या कुछ फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है? आई थिंक इससे ज्यादा रुकना और रुकना मुझे सही नहीं लग रहा है। बट अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक क्वेश्चन, आई एम रेडी फॉर दैट। किसी को पूछना है? मैंने एक मिनट है तो बता दो। Ma'am, may I? यस यस, गो अहेड। Ma'am, I just want to address my question. If you can answer in another session. ओके But ओके, जस्ट टेल मी। yes, ma'am, you said we should analyze the thing in which way our intelligence is strengthen us. So which we should follow. And I have a little bit confusion about the intelligence and the skills, talent. You gave the example of Einstein and the Sachin Tendulkar. So there is a both intelligence and talent. We actually study about the aptitude. So I would know the more clarity about between the intelligence and talent, skills, and which one we should follow ओके, to सो आई choose. टोल्ड Yeah. यू, थैंक यू, इट्स अ रियली वंडरफुल क्वेश्चन। ये क्यूरियोसिटी तो मतलब वेरी लेकिन जायज है। So, what I'll do, I told you in the next session, let me plan this intelligence type का जो पूरा डिटेल्स है ना। I told you A type of जो इंटेलिजेंस है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं देती हूँ। एंड पर अगर टाइम परमिट होता है, अगर तो मैं दोनों को एक साथ देती हूँ, पर्सनैलिटी टाइप एंड इंटेलिजेंस टाइप। इफ यू आर एबल टू फिगर, मैं वहां पे एक एक को डिस्क्राइब करूंगी। इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट थ्रू दैट स्लाइड कि मेरे को आई एम कमिंग इन दिस कैटेगरी, देन वेल एंड गुड। अगर स्टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ, देन आई थिंक यू, आई विल रिकमेंड यू फॉर गो फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? सो टेक वन अटेम्प्ट। अगर शॉर्टकट में काम चल जाता है तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो विल थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है? सो आई Yes, एम ma'am. जस्ट मेकिंग इट कि नेक्स्ट क्लास में आई विल प्लान इन सच ए वे। Yes, ma'am. आने वाले समय में आईएएस ऑफिसर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस टाइप, उसके बारे में बात करेंगे। इवन वी कैन टॉक मेनी मोर करियर ऑप्शंस। और बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है, आप अपने प्रॉब्लम सर को शेयर करो एंड ही विल शेयर विद मी, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर लूंगी। एंड इवन विल डिस्कस कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, उसकी इतने सारे टेक्निक्स हैं। द रीजन आई वाज वेरी गुड, मुझे नंबर लाने में कभी दिक्कत नहीं आई, मुझे मन लगे ना लगे नंबर तो मैं लाती थी, ठीक है? सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर। उस समय आई डिडंट नो मच अबाउट द टेक्निक्स। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई सन, उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, ही वॉज नॉट एबल टू फोकस। सो फॉर हिम आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट एंड आई लर्न अ लॉट। एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, सो इट हेल्प मी टू। So what the knowledge and trends I accumulated due course of time, I would like to share in coming sessions. Okay, Yes, step by ma'am. step, मैंने लेकिन पूरा एक महासागर में एंटर कर जाएंगे हम धीरे धीरे। सो with the help of प्रभास सर, we will figure out कि क्या चीजें कब रखनी है and we'll go ahead. यहाँ तक आई थिंक अगर कुछ और है तो share with sir and he will connect with me and share things accordingly. We'll do ahead. Go ahead.
Yes, sir. Sir, Okay. now you can Yes. take over. Yes. Thank you, ma'am, for your valuable time. And one last closing statement that I would like to give. People or the students who are present out here from the regional background and the students who will be seeing the recording, आई वुड लाइक टू से कि जो रीजनल बैकग्राउंड से हैं और जो वर्नाकुलर मीडियम से हैं, जिनको वो फियर है कि मतलब मैं कैसे बोल पाऊंगी, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं तो बांग्ला मीडियम का हूँ, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, आई वुड लाइक टू से कि आशा मैम स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम, और आपको जरा सा भी नहीं लग रहा होगा कि वो हिंदी मीडियम से है। शी सच अ ब्यूटीफुल इंग्लिश शी स्पोक, है ना? तो पॉसिबल है। सो सो इसकी पूरी आशा मैम, कहानी बताएंगे। आई विल यस यस डेफिनेटली शेयर दिस स्टोरी। द जर्नी इज नॉट इजी फॉर मी, जो क्लास 12 में पास कराया है, in spite of having the like a number one student of the class, scoring so good marks, having so wonderful grammar, like command over the grammar, but not able to speak one line with confidence in front of people. That was my challenge. And from the journey I started from there, so आज I had the confidence I can speak anywhere. It may be national, international, doesn't matter to me, offline, online, anything. So एक जर्नी होती है, ये रातों रात तो नहीं होती, but yes, possible and still to grow. मैं ये नहीं बोलती कि like immense scope is to grow. So yes, journey is still continued. Okay. Okay, Yes, so sir. thank you everyone. We'll be continuing this session. That will be a regular session. It's an official Exademy program. Ma'am is associated with us and she will be there with us till we are there. We are alive. So she has shown her commitment that she will be guiding and all the students. So in this journey, thank you, ma'am, for your presence and your support. Every Sunday Thank you we'll so be much. having the Most session welcome. 9 p.m. to 10 p.m. Please do share this information such that many of the students should get benefited. क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने बीटेक क्यों किया, मुझे खुद नहीं पता। व्हाई डिड आई डू बीटेक? ऊपर से मैकेनिकल एवरग्रीन एवरग्रीन बोल करके लग गया। ऊपर से मैं बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया 10 साल, उसके बाद फिर टीचिंग में, तो वो सब चीज टाइम वेस्ट होता है। मुझे पता है कि आप लोग का भी उसी फेज से गुजर चुके होंगे कि क्या होता है। कोई अंकल ने बोला था, पापा के दोस्त ने बोला था कि ये कर लो वो कर लो, उसी हिसाब से सब चलता है। इंडिया में वही चीज चलता है। सो दैट इज द थिंग। सो आई होप इन द कमिंग टाइम with under the guidance of Asha ma'am, we'll be helping you you people। और मैम एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम, ये सॉरी एक क्वेश्चन है कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो मतलब उसको करवाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, तो आप डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा। वी विल जस्ट लेट वेट फॉर द कमिंग सेशन। मैं उसके बारे में मैं उनको चाहती हूँ ना। आई नो स्टूडेंट्स आर लाइक ना, उनकी जो फिनेंशियल स्टेट भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ना लाइक ना मैं अचानक से बोलूं, बट जिसको रियली रिक्वायर्ड है उसको तो जरूर रिकमेंड करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, नो इश्यू फॉर दैट। एंड उसके उसमें जो भी है ना साइकोमेट्रिक टेस्ट के डिटेल्स एवरीथिंग इन बिटवीन यू कैन इवन गूगल कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, कैसे है, क्या इसकी प्राइसिंग है, इवन यू कैन डू दैट। ठीक है, तो अपना भी रिसर्च करो एंड बाकी तो मैं हूँ ही। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। सी यू नेक्स्ट संडे। मोस्ट वेलकम। सी यू नेक्स्ट संडे। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, ma'am.